Hello everyone, my name is Shubham and here we are in the weekly current affairs recap. Right? Yes. So like last video में हमने कुछ नया start किया था and I got some suggestion from my student and some of like suggestion from other places. So हमने उसको भी continue करने की कोशिश की है, थोड़ा थोड़ा करके जो भी चीज़ें होती हैं, जिस भी particular चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, like for example you need a session on budget, you need some session on Israel Palestine or any other specific topic. अगर आपको सच में नीड है आप प्रॉपरली आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं. बाकी ऑल वी आर हैविंग इन लाइक वीकली रिकैप एंड जो क्वेश्चन सीरीज है वो भी इस साल इस पर्टिकुलर वीक से स्टार्ट हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वी आर हैविंग. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन द चिली. न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है बट आई वॉज रीडिंग सम साइंस, डिफेंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी न्यूज़, सो आई थॉट वाई नॉट कवरिंग दिस, है ना. रीज़न है क्योंकि वी आर हैविंग अ स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ नोन एज इसरो एंड पिछले कुछ सालों से इसरो ने वो माइलस्टोन अचीव किए हुए हैं जो कि एक्सेप्शनल है, राइट. और मज़े की बात यह है कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ स्पेस रिसर्च. लाइक majority of developed country who are having successful Mars mission, they are having like 55,000 crore rupees spending on a single mission and we like 550 crore में हम सीधा मंगल पहुंच जाते हैं, right. So yes, and nowadays we are having good researchers, good scientists who are doing great work. So मैंने सोचा थोड़ा इसको लेते हैं, थोड़ा इसरो को मिलाते हैं और थोड़ा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो न्यूज़ होता है उस पर आपको लेके चलते हैं. सो चिली में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो की हेल्प से दैट इज़ अटाकामा ऑब्जर्वेटरी. अटाकामा यू नो दिस इज़ द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट प्लेस. ये दुनिया का सबसे सूखी जगह है. इट इज़ ऑल्सो अ कोल्ड डेजर्ट and I'm not sure about the exact data, but from last 60 years we don't see a single drop of rain in this particular region. Though this is the love of mother nature that approximately 10 lakh people live on that particular desert. So Atacama में, चिली में स्पेशली, राइट, टोक्यो यूनिवर्सिटी की हेल्प से हमने दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी जो है वो स्टैब्लिश की है एंड इट इज़ हैविंग अप्रॉक्सीमेट 5,640 मीटर हाइट अबव सी लेवल, right, and this is going to capture some infrared, some other cosmic radiation, ultraviolet, and with the help of that they will create a spectrum के बाद imaging होगी and they are going to have data, right. So अब जाते हैं थोड़ा सा इंडिया के स्पेस रिसर्च के केस में. सो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज बेस्ट क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी दैट इज लोकेटेड इन लद्दाख. Yes, the way we are having Chile Atacama Observatory, we are having Ladakh Observatory, which is one of the highest. Before Chile के पहले तो यही highest थी, above sea level 4,500 meters, and this is India's foremost and world's second highest optical observatory that is located in India. Right. Apart from this, we are having Venu Bappu Observatory that is located in Tamil Nadu, GMRT Observatory that is Maharashtra, and Indian Institute of Astrophysics, Bangalore, Karnataka. Fourth one is actually the oldest. So the fourth one is actually the oldest observatory in the country, right. हमारे यहाँ like if I'm not wrong, that was 1763 जब ब्रिटिशर्स ने इस ऑब्जर्वेटरी को स्टैब्लिश किया था एंड तब से लेके ये अभी तक कंटिन्यूस फंक्शन है. वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूस फंक्शनिंग ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड. ठीक. मूविंग ऑन to some other particular advancement, we are having AstroSat. 2015 में हमने भी, you have heard about Hubble, you have heard about James Webb Telescope, we are like some other particular advanced telescope that is located in space. We are having the AstroSat, right. This is one of the particular achievement that we got from ISRO in 2015. So now we are capable of getting the data, getting the what we can say radiation, cosmic radiation from different angle, और हम उसकी imaging करते हैं. So AstroSat that was launched in 2015 is India's foremost space observatory that we know, and it was launched from the Satish Dhawan Space Center as it is written over there, right. And कम ऑन, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स जो हैं उन्होंने अपना क्या कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, थोड़ा सा वो है क्या कहना चाहिए फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, वी आर हैविंग प्लाज्मा रिसर्च ऑब्जर्वेटरी. सो सम अदर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन दे ऑल कंबाइनली मेड दिस पर्टिकुलर थिंग पॉसिबल. नाउ ये हो गई हमारी ऑब्जर्वेटरीज की बात, स्पेस टेलीस्कोप्स की बात. लेट्स कम टू सम ऑफ द मिशन जो इस साल या नेक्स्ट ईयर जो हैं आपको फ्लोर पे आते हुए दिखेंगे. सो द फर्स्ट वन वी आर हैविंग इज गगनयान,
right? And this is the mission in which we are going to send humans in space, right? That is India's first human space mission. Then we are having second one, that is known as Shukrayaan, right? If you are fond of old Indian religious mythological TV serials, you must know Shukra is known for Venus, right? Shukra is the Hindi name of Venus. So this is going to be the second interplanetary mission from Indian Space Research Organization, और हम शुक्र में यानी Venus में भी अपना space probe भेजने वाले हैं. Apart from this, we are also into the like second Mars orbiter mission or MOM, right? Yes. So तुम्हें पता है उस elite club में जिसके जो कि पहले ही attempt में मार्स मिशन सक्सेसफुल कर लेते हैं. लास्ट ईयर की बात की जाए तो चंद्रयान 3 वी आर हैविंग आदित्य L1 जो कि सक्सेसफुली अपनी अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं. आदित्य L1 इज इंडियाज फर्स्ट सोलार मिशन. चंद्रयान 3 के थ्रू हमने साउथ पोल ऑफ मून, दैट इज लूनार साउथ पोल, उसको कॉन्कर किया था. हमने वहाँ पे लैंडिंग की थी. तो जस्ट मेक श्योर कुछ बेसिक्स जो हैं अपने उसमें होमवर्क में रखें. इसरो कब स्टैब्लिश हुआ, राइट? इसरो बनने के पहले नाम क्या था, where is the headquarter, who's known as the father of Indian space research, right? So ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में रेगुलरली आते हैं, थोड़ा होमवर्क करो. चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अगेन a summit, the 46th session of World Heritage Committee that is happening in Delhi, right? Yes, Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the 46th session of World Heritage Committee at Bharat Mandapam in New Delhi. Now this is the committee जो कि हर साल मिलती है, right? Yes, they meet annually and they decide which particular sites, heritage site is supposed to be in the list which is supposed to be designated as UNESCO World Heritage Site, और ये continue करते हुए आगे अपना काम करते जाते हैं. So let's have some particular facts related to this committee. So this is the committee that is under the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization which we call UNESCO, right? And ये वो कमेटी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन. हाँ भाई साहब, ये ऐसा कन्वेंशन है जो हमें बताता है कि किस तरीके से हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की रख रखाव करनी है, दूसरी चीज़ें करनी है. दैट्स व्हाट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, लाइक आई हैड अ फ्रेंड जो कि मतलब आई एम स्टिल हैविंग दैट फ्रेंड, राइट? ही वाज वर्किंग विद द स्टेट आर्कियोलॉजी, तो उसने मुझे बताया था कि किस किस तरीके के काम होते हैं. सो इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कन्वेंशन जिसके थ्रू हम अपने हेरिटेज को संभाल के रखते हैं. सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट कन्वेंशन, वर्ल्ड हेरिटेज फंड कैसे सेट होगा, एलोकेशन कैसे होगा, फाइनेंस असिस्टेंस क्या मिलेगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सेट करते हैं. एंड दे आर दी also the committee which actually prepares the final list or what we can say final entries कि किसको heritage site बनाना है यूनेस्को की, किसको नहीं बनाना है, right? So this was the particular summit that is happening in New Delhi currently, and this is the photograph of India's UNESCO World Heritage Site. आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के आ रहा हूँ कमेंट बॉक्स के लिए कि बताओ टोटल कितनी है, उनमें से कितनी कल्चरल हैं और उसमें से कितनी नेचुरल हैं और उनमें से कौन सी कितनी जो है वो मिक्स हैं. और अगर आपको और कुछ करना है तो फिर आप ये भी ढूंढ सकते हो कि सबसे नई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज यस द यूनियन बजट 2024-2025. आई नो यू आर अवेयर अबाउट द बजट थ्रू मीम्स. Yeah, I know you. I know. Like, see, मैं बूढ़ा नहीं हूँ ना. I belong to your generation only. So yes, from last 2-3 days, Twitter हो, Instagram हो, Facebook हो, everywhere all you are finding is meme related to budget, right? Though we are not going to cover the entire budget in this particular session. थोड़ा सा कुछ बेसिक हाइलाइट्स जो हैं, जो न्यूज़ में आई हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट में हैं, जो PIB ने निकाली हैं, मैंने कुछ बेसिक्स निकाले जो आपके काम के हैं. राइट, इफ़ यू नीड लाइक फुल लेंथ बजट सेशन कि बजट कैसे बनता है, बजट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है और अल्टीमेटली बजट में नया क्या है इस पर्टिकुलर साल में, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. वी कैन हेल्प यू आउट. हम एक बजट का सेशन का वीडियो बना सकते हैं, बट पहले बता दो तो हम मेहनत करें. ठीक है, सो दिस वॉज द फुल लेंथ बजट ऑफ 2024-2025. आपको पता है दिस ईयर वी हैड जनरल इलेक्शन फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, राइट? March, April, May, June. So we did not had a full length budget for entire particular year. We had interim budget that was shown to us in the last budget session. Now we are having a new Lok Sabha
right? We are having a new established government, but we are having our old beloved finance minister, that is Srimati Nirmala Sitharaman, and she became the record breaking finance minister who presented 7th budget in a row. अभी तक ऐसा कोई भी पर्टिकुलर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था जो इतना लंबा बजट सेशन पब्लिश हुआ या पर्टिकुलर बजट प्रेजेंट कर रहा है. सो शी एक्चुअली प्रेजेंटेड 7th टाइम, एंड दिस टाइम शी हैड सम पर्टिकुलर मेजर अनाउंसमेंट. कुछ टैक्स स्लैब्स में चेंज हुए हैं, कुछ टैक्सेस में चेंज हुए हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को प्रेफरेंस मिली है, कुछ स्टेट्स को अलग अलग तरीके से हेल्प मिली है. सो वी हैड टन्स ऑफ डिफरेंट थिंग. हम बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं करेंगे, बट लेट्स हैव इट कि क्या कहानी है क्या नहीं है. सो जुलाई 23rd 2024-2025 के लिए हमें बजट मिला, एंड दिस इज़ द फर्स्ट बजट ऑफ बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट सिंस इट री-इलेक्टेड इन जून, जब से हमारा नया सरकार बना तब से. सो क्या क्या कहानी है उस पर अपन जाते हैं. व्हाट वी आर हैविंग. सो सबसे पहले NHAI, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी, राइट, दे गेट 1.67 लाख करोड़ फॉर द ऑफ द बजट. Khelo India Games, right, they get the major share of budget for the sports. Government proposed 26,000 crore for various roads project in Bihar. काफ़ी इस पे बवाल हुआ था कि भैया उसे बिहार और आंध्रा को ही क्यों दे रहे हो, राइट, बट दैट्स ओके. बजट कमेटी, बजट के पास जो भी बजट मेकिंग प्रोसेस होती है, दे मस्ट हैव थिंक लाइक सम थॉट्स रिगार्डिंग दिस. तो हम पॉलिटिक्स में जाके हम फैक्ट्स में रहते हैं, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज डिफेंस गॉट दी मोस्ट ऑफ द शेयर, दैट इज 6.21 लाख करोड़. और तुम्हें पता है कि डिफेंस को सबसे ज़्यादा बजट में पैसा क्यों मिलता है, राइट. वी आर हैविंग 2 वेरी फ्रेंडली नेबरहुड हु आर न्यूक्लियर पावर लाइक पाकिस्तान एंड चाइना. तो अगर हमें सेफ एंड सिक्योर रहना है तो हमें डिफेंस में बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, राइट. चलें नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट उसमें जाते हैं. सो द न्यू पेंशन स्कीम इज एड्रेस टू द रेलेवेंट इशूज. तो नई पेंशन स्कीम का भी प्रपोजल आया है. देन वी आर हैविंग कस्टम ड्यूटी कट्स फ्रॉम द लिथियम कोबाल्ट फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन. तुम्हें पता हो तो ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में यूज होने वाले लोग हैं, सॉरी एलिमेंट्स हैं, right. All Union budget also placed 15,000 crore for the Andhra Pradesh capital, that is Amravati. Custom duties on gold, silver slashed for 6% in the budget 2024. So भाई साहब अगर सोना खरीदना है तो सही समय है, ऐसा मुझे इंस्टाग्राम के इकोनॉमिस्ट लोगों ने बताया है, राइट. सो फ्रॉम बिंग माई साइड, यस, अगर कस्टम ड्यूटी कम हुई है तो यू कैन फाइंड आउट कि हाँ गोल्ड के सिल्वर के प्राइस कम हुए हैं. तो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, गो अहेड, बाय गोल्ड. Let's move to the next one. Job for youth, tax regimes and salary class. Right, government abolished angel tax investment in the startups. Custom duty on gold, silver cut up to 6%. Now, the next one is 5,000 monthly internship allowance announced for the 1 crore youth. ऐसा नहीं मिलेगा कि आप पहुँचे और आपने बोला कि हमें 5,000 allowance चाहिए monthly. You have to go to some particular organization जहाँ आपने काम किया हो, सीखा हो, उसके बाद ये चीज़ होती है, right. The next one is allocation of 1.52 lakh for the agri-allied sector. The budget provide 1.48 lakh crore for the education, employment and skills. The new tax regime standard deduction increased to 75,000. ये काफ़ी ज़्यादा बोलने जाने वाला या बात किए जाने वाला टॉपिक था कि भैया हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ गया है तो हमें और बचत होगी, बट साइड में थोड़े टैक्सेस भी बढ़ाए गए हैं. सो कितनी क्या सेविंग्स होगी वो आपको इकोनॉमिस्ट बताएंगे. आगे बढ़ते हैं. 3 करोड़ एडिशनल हाउसेस अंडर दी PM Jay has been announced. So जो पर्टिकुलर PM आवास योजना है, PMAY, उसमें उन्होंने 3 करोड़ नए एडिशनल हाउसेस बनाने के लिए नेक्स्ट 1 ईयर में अनाउंस किया हुआ है, राइट. गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके पर्टिकुलर वो हैं, क्या कहना चाहिए, कंपोनेंट्स हैं या जो बैटरीज हैं, चार्जर्स हैं, उनमें भी थोड़ा थोड़ा करके स्लैश डाउन किया है. ये कुछ मेजर हाईलाइट थी बजट की, राइट. विल ट्राई कि अगर आप सही तरीके से हमें मतलब हमें ऐसा लगता है कि यू नीड अ बजट सेशन, प्रॉपर बजट, फुल लेंथ बजट हाइलाइट्स, तो फिर हम उस पर काम करेंगे, राइट. टिल देन दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. आई विश यू एंड ऑल योर लव्ड वन अ गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, सी या.